स्टार्ट करें. So good morning friends. You see, all of you are quite aware that companies invite application for some post in their organizations, and if you see, even for one post companies receive large number of applications, and of them shortlist and finally select only a few candidates. Now you must be wondering, why is it that only a few candidates get the attention or the interest of the employer while others fail to get the attention of the employers and only a few get the coveted post? I think answer lies to the question of the application. Application is a kind of written document, and you find that different terms are being used for the written document: curriculum vitae, job resume, and the biodata. So these are the three terms being used for the written document which the job seekers send to the prospective employers, stating their qualification, experience, skills, and other required information. And this curriculum vitae is the British usage, whereas job resume is mostly used in America, and in India we have been now starting using the term job resume. Curriculum vitae is a detailed summary of your qualification, experience, and skill, whereas the resume contains the, you can say, brief summary of your qualification, experience. And curriculum vitae has been taken from a Latin word, and its meaning is course of life. So it means it describes the complete, you can say, picture of oneself. So this session is about preparing job resume or writing curriculum vitae, and first of all we will learn the difference between these two terms, and then we will focus on tips of writing effective job resume, and finally what it should include and what it should not include. We will see what are the things we must include and what are the things we must not include, and finally you will be able to rate your own job resume. That is how much marks you can give to your own job resume. And friends, this job resume is the most important part of seeking the interview letter. And the writer of job resume, by stating his qualification, his experience, and other required information, tries to lure the prospective employer in the best possible way and in the shortest time. Why shortest time? Because companies receive large number of applications. They don't have enough time to read each and every job resume. जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जॉब रिज्यूमे इतना क्रिस्प हो कि एटलीस्ट 1 मिनट में वो एक्सट्रैक्ट निकाल सकें कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. दैट इज़ वाई आई सेड इन द बेस्ट इन द शॉर्टेस्ट टाइम अवेलेबल, and he or she tries to put his strong case in support of himself or herself. And it is important. Why it is important? Because job resume is representing you in your absence. The employer has not seen you, you have not seen the employer, so it is a link between you and the prospective employer. क्योंकि यही एक माध्यम है. जब आप देखते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है तो दे वांट एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स, और कई बार एम्प्लॉयर जो है अपना एक फॉर्मेट देते हैं कि इस फॉर्मेट में आप जो है अपनी एप्लीकेशन दीजिए, और कई बार वो फॉर्मेट नहीं सप्लाई करते, तो उस समय हमें डिसाइड करना होता है कि जॉब रिज्यूमे में कंटेंट क्या डाला जाए. तो इसको हम आज अभी डिटेल में स्टडी करते हैं. सो रिज्यूमे इज ए पर्सनल समरी ऑफ योर प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड क्वालिफिकेशन, and it includes information about your career goal. Career goal is very important. Career goal, or you can say career objective or statement of purpose, any name can be given to it. Your career goals, education,
your work experience, activities, honors, and any special skills you might have. So it is a summary of your academic and work history. Now let us have the distinction between curriculum vitae. Excuse Curriculum me, vitae, as I told you in the beginning, हाँ जी बेटे. excuse me sir, from TTC Jodhpur. Sir, हाँ जी. actually यहाँ पे अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं. So ओके if you ओके ठीक है. हिंदी में. तो करिकुलम विटा जो है, आप इसको हम कहते हैं इट्स ए डिटेल्ड, लेंथी एंड स्ट्रक्चर्ड लिस्टिंग ऑफ योर एजुकेशन. ये कई पेजेस में आ सकता है. और करिकुलम विटा यूजली आप जब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब जा रहे हैं, यू आर एक्वायरिंग वेरियस स्किल्स, तो करिकुलम विटा जो है उस स्थिति में यूज किया जाता है. और जॉब रिज्यूमे जो है वो एक पेज का होना चाहिए. आप क्योंकि पहली बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक 1 पेज इज सफिशिएंट. सो इट इज शॉर्ट, इन मेनी केसेस 1 पेजर इज रिकमेंडेड. जॉब जो करिकुलम विटा है, इट इज मोर डिस्क्रिप्टिव, यानी डिटेल्ड में. जैसे मान लीजिए आपने कोई सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किया, तो ब्रीफ समरी ऑफ द फाइंडिंग्स, और यू कैन से फाइंडिंग्स ऑफ दैट पेपर कैन आल्सो फाइंड ए प्लेस, राइट. लेकिन जॉब रिज्यूमे में हम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे कि ये पेपर हमने इस कॉन्फ्रेंस में और इस ईयर में और जो है वो प्रेजेंट किया. ओके, यानी उसमें सिर्फ एक 1 लाइन स्टेटमेंट कैन बी गिवन. तो करिकुलम विटा में उसको डिटेल में लेते हैं. एंड करिकुलम विटा इज ऑफन यूज्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन. जैसे अभी आप में से कुछ जो हैं वो फैकल्टी भी बैठे हुए हैं, और आपने से लेक्चरर हैं, लेक्चर से आपने सीनियर लेक्चर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एचओडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो. सो इट मीन्स यू नीड टू गिव द डिटेल समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एटसेट्रा. नाउ कमिंग टू why it is important, as I told you, it's the first meeting between you and the prospective employer. और आप सबने एक एक्सप्रेशन सुना हुआ है, first impressions are lasting ones. So how do you want to be remembered? Wrinkled, unorganized, or neat and structured? Long and boring, or precise and interesting? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने जॉब रिज्यूमे को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और बहुत सारे जो एचआर मैनेजर्स ने हमें बताया है कि कई बार जॉब रिज्यूमे इतना बढ़िया लिखा हुआ होता है, उसमें कोई भी कटिंग नहीं है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्ड वे में है. तो हालांकि उस बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है या जो स्किल्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करते, लेकिन हम उसको इंटरव्यू में एक मौका देते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि उसमें और क्या स्किल्स है, और हो सकता है कि उसको हम एम्प्लॉयमेंट दे दें. तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसको आप जो है किसी भी तरह से कैजुअल वे में मत लीजिए. और यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट ए स्टैटिक थिंग कि आपने एक जॉब रिज्यूमे तैयार कर दिया और 10-15 कंपनी में वही का वही भेज दीजिए. दिस इज रॉन्ग. आप हर एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को देखिए, यानी आप अपने आप को कहते हैं ना, पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज. इसका मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें जो वो एम्प्लॉयर उस व्यक्ति में चाहता है. फिर आप वो चीजें सबसे पहले हाईलाइट कीजिए, राइट, जो वो चाहता है नेचुरली. बिकॉज ये जो जॉब रिज्यूमे है ना, इट इज ए टिकट फॉर इंटरव्यू. इट मीन्स दिस जॉब रिज्यूमे मस्ट कन्विंस द एम्प्लॉयर दैट यू डिजर्व एन इंटरव्यू लेटर. ये आपको सीधा एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं तैयार कर रहा, यानी एक फर्स्ट टिकट है. देखिए ना, आपको मैंने बोला एक पोस्ट के लिए 100 एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो 100 को इंटरव्यू करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं है. वो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं, बाकी को डस्टबिन में फेंका जाता है जो जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं. तो ये जो आपका जॉब रिज्यूमे है, बिकॉज वो कहते हैं ना, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, यू आर ट्राइंग टू सेल योर क्वालिटीज. So before you sell yourself in the interview,
योर जॉब रिज्यूमे मस्ट कंटेन योर सेलिंग क्वालिटीज। आप देखिए मार्केट में जाते हैं, दो शॉप साथ साथ हैं, दोनों एक ही प्रोडक्ट बेच रही हैं, लेकिन एक शॉप में मैक्सिमम जो है वो लोग जाते हैं परचेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो उस जिसमें मैक्सिमम लोग जाते हैं वहां का जो सेल्समैन है उसमें एक कैपेबिलिटी है टू डिमॉन्स्ट्रेट द फीचर्स। ओके, वो बेस्ट वे में सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, और दूसरी शॉप में रश नहीं है। सो बिफोर यू सेल योर सेल्फ इन द इंटरव्यू, सेल ही कर रहे हैं ना हम अपने आप को, हम अपनी जो क्वालिटीज है उनके सामने रख रहे हैं। So this job resume must contain your selling qualities. So it's the first link between you and the employer, क्योंकि आपने उनको नहीं देखा, उन्होंने आपको नहीं देखा, so it represents you in your absence. Secondly, job resume tell the employer a great deal about yourself, where you have been, where you are, and where you are headed. So this story must be told quickly and briefly. You have only a few moments to convince the employer that I deserve an interview letter. बहुत कम समय होता है उनके पास, इसीलिए they employ some sort of eliminating process. तो eliminating process क्या है कि वो रिज्यूमे को देखते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जॉब रिज्यूमे में आपने वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो वर्थवाइल होगा, अदरवाइज जॉब रिज्यूमे जो है वो डस्टबिन में जाएगा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जॉब रिज्यूमे टेल यू ए ग्रेट डील अबाउट योरसेल्फ। जब एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट आती है तो मैं सोचता हूँ यार मेरे पास तो वो क्वालिटीज नहीं है, मैं नहीं अप्लाई कर सकता। जब तक आप अपनी क्वालिटीज या अपना जो स्किल जो आपने एक्वायर किया 3 साल के डिप्लोमा में या 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में जॉट डाउन नहीं करते कि मेरे में क्या क्या चीजें हैं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर वो जॉट डाउन करते हो देन यू गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और यही जो कॉन्फिडेंस है ये आपको इंटरव्यू डे में लेके जाएगा, राइट? तो जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते हो कि मेरे में क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या स्किल एक्वायर करी थी, सेकंड सेमेस्टर में क्या किया था, थर्ड सेमेस्टर में क्या किया था। तो हमें एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि जो हमने कोई मान लीजिए वर्कशॉप अटेंड किया या कहीं पर हमने से कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो मैंने ये भूमिका निभाई थी, क्योंकि सुबह वाले सेशन में डॉक्टर MP पुनिया ने क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ आस्क, और आस्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी? एटीट्यूड को। मैं आपको बताना चाहता हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है, एंड दैट रिसर्च हैज कंट्रीब्यूटेड दैट योर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू योर सक्सेस। इफ ए पर्सन गेट्स ए जॉब और इफ ए पर्सन गेट्स promotion, 85% of the time it is because of his or her attitude, and only 15% of the time it is because of his knowledge and skill. तो knowledge and skill को इतनी महत्ता नहीं, वो तो हम acquire कर सकते हैं, लेकिन attitude plays a very important role। वो सुबह डॉक्टर MP पुनिया ने बहुत अच्छे विजुअल्स के साथ वो illustrate किया था। So हमें उसको black and white में रखना है। And the purpose of sending a job resume is to obtain an interview letter. That is, after reading your job resume, the employer should want to get to know you better. So it is like your friend if it is properly written. और यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा, never falsify any information। कि भी जैसे मैं 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, उसने लिखा कि उसने कुछ डिफरेंट सी चीजें लिखी, नहीं मैं भी अपने में लिखूं, कई बार हॉबीज होती हैं या कुछ और इंफॉर्मेशन होती है। सो बिकॉज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द एम्प्लॉयर हैज अबाउट यू इज फ्रॉम जॉब रिज्यूमे। सो नेवर पुट एनीथिंग इन द जॉब रिज्यूमे
that may put you in an awkward situation in the interview. जो है वो राइट तो इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो छिपाइए नहीं, जो आप में क्वालिटीज हैं वो सामने रखिए. So its purpose is to get the interview. So to conclude, job resume is just the beginning in the search of a right job. और आपने ये एक्सप्रेशन भी सुना हुआ है, वो क्या है? Well begun is half done. सुना है ना ये? क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी है तो बाद में काम आसान हो जाएगा. So if your job resume is properly written, if it is appropriate, up to the mark, to the point, then it is surely going to get you shortlisted in the screening process and will help you move very closer to the coveted job. So job resume को आप बहुत ही इम्पोर्टेंस देंगे और इसको लिखने के टिप्स क्या हैं वो मैं आगे बताऊंगा. एंड इट मे ओपन डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, आप इसको मैंने पहले बोला था, इट इज नॉट ए स्टैटिक, इट हैज टू बी डायनेमिक, इट नीड्स टू बी अपडेटेड. जैसे ही आपने कोई स्किल एक्वायर किया, कोई नॉलेज एक्वायर किया, नेवर सेंड सेम रिज्यूमे टू डिफरेंट कंपनीज. Always prepare the job resume as per the requirement of a particular organization. उसको मॉडिफाई कीजिए. आज के ज़माने में मॉडिफाई करना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इसको रखा हुआ है, जस्ट आपको मॉडिफाई करना है. Now coming to the different types of resume, there is no standard format for writing a job resume unless some organization sends its own format. So the pattern of job resume may take different format depending upon the requirement. So what is required is do the SWOT analysis of the job profile you are applying for, and then you can decide about the content of the job resume. पहले आप एनालाइज कीजिए कि ये जॉब जो है इसमें क्या रिक्वायरमेंट है और मेरे में क्या है. So there are basically two types of job resume. One is the chronological resume. इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम जो अपनी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिटेल करते हैं, जिसमें जो मोस्ट रीसेंट वन है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद ईयर वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, राइट. और इसका जो कंटेंट है वो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जिसमें आप अपना एड्रेस, और एड्रेस में भी कोई एब्रीविएशन नहीं होंगी, देन ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर अलोंग विद द एरिया कोड, ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में. Then career objective, work experience and qualification. क्योंकि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे कैन गिव यू कैन से इम्पोर्टेंस और फोकस ऑन द क्वालिफिकेशन फर्स्ट. क्योंकि they have not acquired, they have not served any other organization, they are applying for the first time. तो क्वालिफिकेशन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस या स्किल्स. तो स्किल्स को भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्किल्स जो है मैंने 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में या 3 साल के डिप्लोमा में, जैसे आपसे 6 महीने के लिए आप किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल सेमेस्टर के लिए गए, राइट, तो वहां पर आपने क्या क्या सीखा. कंप्यूटेशनल स्किल्स कौन कौन सी हैं, कौन से सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर आप जो है आपकी कमांड है, ये सारी चीज़ें, चाहे बच्चा सिविल का है, चाहे मैकेनिकल का है, चाहे इलेक्ट्रिकल का है, चाहे इवन वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, ये कंप्यूटेशनल स्किल्स आर वेरी वेरी एसेंशियल. तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा पर्टिकुलरली फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स कि चाहे वो सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, जब भी आपके पास 15 दिन या 1 महीने की छुट्टियाँ आती हैं
कभी भी घर में आइडल नहीं बैठे। गो टू सम ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइन फॉर सम 2 वीक्स ड्यूरेशन प्रोग्राम, बहुत सारे जो हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। देन सेकंड वन इज द फंक्शनल और यू कैन से स्किल काइंड ऑफ रिज्यूमे। ऑब्वियसली इसमें हम स्किल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और ये तब लिखेंगे जब हमने बहुत सारी जॉब्स जो है 3-4 जॉब ले ली और डिफरेंट स्किल्स यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने काम किया है, तो हम स्किल को हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसका जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे स्किल। सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद स्किल, उसके बाद एक्सपीरियंस एंड देन एजुकेशन। तो एजुकेशन को हमने लास्ट में रखा है, लेकिन वही फिर मैं बात कहना चाहूंगा कि जब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इंपॉर्टेंस देंगे। और यू कैन थिंक अबाउट ए कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ जॉब रिज्यूमे, जिसमें क्रोनोलॉजिकल स्किल क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और स्किल और फंक्शनल रिज्यूमे की भी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसमें यू विल इंक्लूड मेनी थिंग्स। ओके, then select the format and that shows your ability to greater advantage for the job at hand, और देखिए कि कौन सा जॉब रिज्यूमे जो है वो आपके लिए बेटर है। there is another kind of job resume called as scannable resume, जिसमें कंपनी जो है वो OMR शीट भेजती है, ओके, और डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या ब्लैकनिंग द सर्कल्स करते हैं, तो वो स्कैन किया जाता है और उससे जो है वो आपकी जो क्वालिफिकेशन जो स्किल्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होगी, देन दे कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। और देयर कुड बी ऑनलाइन रिज्यूमे आल्सो। कई बार कंपनीज कहती हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन या अपना जो डाटा है वो ऑनलाइन सबमिट करना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले एक रफ जो वर्डिंग है वो तैयार कीजिए, राइट, क्योंकि उसमें वर्ड्स या इवन कैरेक्टर्स की लिमिटेशन होती है कि इतने कैरेक्टर या इतने वर्ड्स का ही वो इंफॉर्मेशन डालना है। तो पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कीजिए। आसान है वो करना, रादर देन डायरेक्टली पुटिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय आपको कभी कुछ ढूंढना है, कभी कुछ ढूंढना है, फिर आपको फाइल खोलनी है। तो पहले वो कंपोनेंट्स देख लीजिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन सेपरेटली आप रखिए और फिर देन यू ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन। सो ऑनलाइन रिज्यूमे, परफॉर्म ऑन वेबसाइट, एप्लीकेशन टू फिल एज पर द रिक्वायरमेंट, और डिजाइनिंग रिज्यूमे इन एन इमेजिनेटिव मैनर बाय प्रोवाइडिंग लिंक्स टू नंबर ऑफ फाइल्स। कुछ बच्चे इस तरह से भी बनाते हैं, डिफरेंट फाइल्स को वो हाइपरलिंक से उनको लिंक अप कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस को लिंक कर दिया, वहाँ पर वो डिफरेंट डिटेलिंग दे दी। ओके, इसी तरह ये जैसे आर्किटेक्चर वाले बच्चे हैं या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हुए हैं या उन्होंने अपने जो सैम्पल बनाए हुए हैं वो जो है प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू resume writing stages, very important, pre-writing stage. So before you prepare or before you give the final, you can say editing, you collect necessary material, draft the objective, skill and work history। और यहाँ पर मैं आप सबको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे ही आपने देखा कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप किसी तरह से इंक्वायर करने की कोशिश करें कि वहाँ पर मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, मुझे किस तरह का काम दिया जाएगा। फिर आप मैच कीजिए कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है मेरे में कौन सी पहले वो क्वालिटीज़ हैं, पहले मैं वो हाईलाइट करूं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैच होगा बिटवीन your resume and their requirement, better are the chances that you will get an interview letter। वो बात की बात है कि आपको वो जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन पहला पर्पस है टू गेट एन इंटरव्यू लेटर।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप पहले उस कंपनी का जो एंटीसीडेंट्स हैं वो अक्वायर कीजिए कि उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस हैं, कितना टर्नओवर है, क्या उनकी जो पैकेजेस हैं, ओके, या जो एम्प्लॉय जो स्कीम्स हैं वो क्या क्या हैं। क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं फिर हम क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें तो है ये है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं है, आप अप्लाई तभी करेंगे जब आप ये एक्वायर करेंगे। और उसके साथ साथ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और या उस व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज या क्या स्किल्स होने चाहिए, फिर उनको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। So find out general job information, that is the desired qualification, the skills and the experience. For this you collect newspaper, check with placement office sites, trade journals, magazines, newsletters, directories. Even you can consult your teacher, your professor, company literature, search web। ये वेबसाइट में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल एक वेबसाइट, हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर करके पड़ा हुआ है। उसमें व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन इज अबाउट, हु इज फंडिंग दिस इंस्टीट्यूशन, इनके इस इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज क्या हैं, फैकल्टी, हर एक फैकल्टी का प्रोफाइल अलॉन्ग विद उसकी पब्लिकेशन फोटोग्राफ, देन बैंक डिटेल, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इसी तरह हर एक इंडस्ट्री या कंपनी जो है वो अपनी वेबसाइट पे ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनको वो डालना होता है कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कितनी एनुअल टर्नओवर है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, पूरा जो है। एंड दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट आल्सो फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट से, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ मैंने साइट्स दी हुई हैं, naukri.com, hotjobs.com, careerindia.com। इसी तरह न्यूज़पेपर में, ट्रिब्यून में, टाइम्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर और डिफरेंट डेज पे, जैसे वेंसडे के को टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यून की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की डिटेल आती है। एंड देन यू डिसाइड विच रिज्यूमे इज एप्लीकेबल इन योर केस, क्योंकि मैंने 3-4 आपको रिज्यूमे बताए हैं। एंटीसीडेंट्स ऑफ द कंपनी ऑलरेडी मैंने अभी शेयर किया आपके साथ। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, क्योंकि कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको मालूम है हमारी इंडस्ट्री क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ कहाँ पर इसकी ब्रांचेस हैं, लोकेशंस क्या हैं, टर्नओवर क्या है। तो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू यू नीड टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, और यही इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंस देगी। और जब आपसे पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू टेल देम, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछना है कि आप, हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं या हमारे ये सर्विसेज हैं, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करें। पहला सवाल तो यही आता है इंटरव्यू में, आप मुझे 5 मिनट में बताइए कि हम आपको क्यों हायर करें। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों हायर करें, तो इसलिए कंपनी की एंटीसीडेंट्स जानना और फिर देखना कि मेरे में क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो वो उनको कंट्रीब्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यू हैव टू सी। प्री राइटिंग स्टेज में देन एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, इवन द स्किल्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर एटसेट्रा। राइटिंग स्टेज, फाइनल ड्राफ्ट। नाउ इन मोर केस व्हाट शुड ऑलवेज इंक्लूड। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इंक्लूड करना है। पहला है योर नेम, very important, okay। Then contact information, so address, give complete address, no abbreviation। जैसे मैं लिखता हूं NITTR सेक्टर 26, NITTR इज एब्रीविएशन, पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह मोहल्ला है या कोई गांव है तो यू राइट इनकम्प्लीट। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर विद एरिया कोड, ईमेल आईडी, वेब एड्रेस। कैंपस में रह रहे हैं तो इस तरह से एड्रेस लिखेंगे, और अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो इस तरह का लिखेंगे, राइट। दिस इज रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। देन करियर ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिज्यूमे विच डिस्क्राइब्स योर मोटिव फॉर द जॉब।
and basically it gives at a glance picture of you and your career objective. और जो बाद में इंफॉर्मेशन आ रही है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दैट मस्ट लीड टू द करियर ऑब्जेक्टिव, यानी वो करियर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो साथ में इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो उसके साथ रेलेवेंट होनी चाहिए. तो वेरी इंपॉर्टेंट, it also helps the employer to determine whether your goal is in line with their organization and the position available. So take your time to create a powerful opening for resume. Keep it short, एक दो सेंटेंस में होना चाहिए, just 1 or 2 sentences immediately after the contact information. इसको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, रिज्यूमे कैप्सूल, करियर गोल्स और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर गिविंग, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट नहीं सप्लाई किया गया तो यू राइट सिंपली करियर ऑब्जेक्टिव. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और आपसे पूछूंगा, एक मैंने ये करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, एन इंटर्नशिप allowing me to utilize my knowledge and expertise in different areas. The question is this a good objective statement? क्या कमी है इसमें और बैक क्या दे रहे हैं? So it is well written, but it raises many questions like what kind of internship, not clearly specified in the statement. Then what knowledge, मैंने लिखा an internship allowing me to utilize my knowledge. Knowledge तो अथाह सागर है, right? कौन सी knowledge? What kind of expertise? Which areas? मैंने लिखा an internship allowing me to utilize my knowledge and expertise in different areas. तो ना तो मैंने areas define किए, ना मैंने नॉलेज जो मेरे में है कौन सी है, कौन सी एक्सपर्टीज है उनको स्पेसिफाई किया, राइट? सो दिस इज नॉट ए गुड करियर ऑब्जेक्टिव. ए गुड ऑब्जेक्टिव आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट पोजीशंस आर यू अप्लाइंग फॉर, व्हाट आर योर मेन क्वालिफिकेशन, व्हाट आर योर करियर गोल्स, व्हाट इज योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी. मैं उदाहरण देता हूं. सो अवॉइड overgeneralized statement like a position allowing me to utilize my knowledge and expertise in different areas. ये generalized है ना, okay? Avoid statement that focus only on what a company can do for you. कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, a position where I gain experience in working on biological problems. तो कंपनी को क्या फायदा हुआ, खुद को आपने एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए. Make this statement as specific as possible, like a position which allows me to apply my background in engineering and high performance computing to biological problems. Right? तो इस तरह से हम करियर ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे. अब ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोस्ट के लिए. These are some of the career objective, like to make a sound position in corporate world and work enthusiastically in team to achieve goal of the organization with demotion and hard work. अब कंपनी आपसे पूछेगी कि enthusiastically का मतलब क्या है और साथ में devotion and hard work, यानी आपके लिए कोई, आपके पास कोई इनोवेटिव टेक्निक है जिससे आप हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो. यानी कंपनी तो परफॉर्म कर ही रही है, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन से मेरी कंपनी में किस तरह से जो गेन आएगा, तो आपके पास वो आंसर होना चाहिए. और वो आंसर जो है आपके नीचे जो आपने एक्सपीरियंस स्किल्स दिए हुए हैं वो आंसर करेंगे, राइट? सो मैंने हिंट आपको दिया कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि उस कंपनी में मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, या उस काम को करने के लिए उस व्यक्ति में कौन से स्किल्स या किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, क्या मेरे पास है. अगर है तो उनको सबसे पहले हाईलाइट करना है, क्योंकि कंपनी बाद वाले पेजेस बाद में पढ़ती है. पहले तो शुरू में जो आपने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं अपने, क्योंकि दीज आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स, कि ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं,
और वो उनकी रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर मैच करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें उन एट्रीब्यूट्स को लेके, और जब आप उनको कन्विंस कर पाते हैं देन यू विल बी सेलेक्टेड। एजुकेशन, यू मस्ट इंक्लूड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आल्सो। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसको कहाँ पर लोकेट करें। तो अगर आप अभी अभी पास आउट कर रहे हैं तो ये सबसे पहले आना चाहिए, अदरवाइज एक्सपीरियंस के बाद या स्किल के बाद आना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो उन्होंने लिखी हुई है। आप एलिजिबल तभी होंगे जब वो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हो, लेकिन आपके पास स्किल्स क्या हैं। देखो क्वालिफिकेशन तो आपके पास बीई डिग्री हो गई या डिप्लोमा हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, दैट इज ए रिक्वायरमेंट, तो इसलिए उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना। अगर आप अभी ज्वाइन कर, अभी आप निकल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे कि आप डिप्लोमा, उसके पहले आपने 10th किया, 8th किया, वगैरह वगैरह। और उसमें भी आप जो है टेबुलर फॉर्म में देंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। टेबुलर फॉर्म में कैसे कि पहले कॉलम में क्वालिफिकेशन टाइटल आ गया, दूसरे कॉलम में ईयर आ गया, तीसरे कॉलम में बोर्ड और यूनिवर्सिटी आ गया, और चौथे कॉलम में आपकी पोजीशन या सब्जेक्ट्स कौन से आपने पढ़े, क्योंकि डिप्लोमा लेवल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स की जो है डिटेलिंग आ गई, मेन सब्जेक्ट्स। ओके, सो स्किल्स, लिस्ट ऑल दैट आर अप्रोप्रिएट टू द टाइप ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। वही सारी स्किल्स आपने हाईलाइट करनी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे ही एक जॉब निकलती है आप वहां से इंक्वायर करें या इंफॉर्मेशन गैदर करें कि कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जॉब रिक्वायरमेंट है, और वो स्किल्स को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। देन अनदर इज एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में पूरा उसका एड्रेस देंगे। देन थर्ड कॉलम फ्रॉम टू, ओके, ईयर। देन अगले कॉलम में क्या आएगा, डेजिग्नेशन एंड से पे, अगर आप पे का उन्होंने दिया है तो पे लिखेंगे, एंड रीजन फॉर लीविंग, ये आप अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ये जो फॉर्मेट है कंपनी ने प्रोवाइड किया है और उसमें उन्होंने कॉलम रखा है रीजन फॉर लीविंग, तो जैसे सुबह डॉक्टर पूनिया ने बताया था, यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन इन पॉजिटिव वे, कि मैं अपनी जो है मैंने स्किल्स ये अक्वायर कर ली एंड फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स आई एम अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सवाल कई बार जो है इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जाता है कि आप वहां पर काम कर रहे हैं, उस जॉब को क्यों छोड़ रहे हो, मेरे पास क्यों आना चाह रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव वे में आंसर देना है, नॉट इन दैट वे कि सर वहां का जो मैनेजर बड़ा खड़ूस है, मैं बहुत तंग हूं। यानी सुबह डॉक्टर पूनिया ने बताया था, नेवर क्रिटिसाइज द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर और द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ऑलवेज एम्फेसाइज गुड। इवन जॉब रिज्यूमे में भी मैं बोलता हूं, एम्फेसाइज गुड एंड डी एम्फेसाइज बैड। वहां से आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है, ओके। सो एटीट्यूड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक्सपीरियंस, देन डेट्स, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने पिछली कंपनी में जो काम किया, सो हाईलाइट दोज ऑफ योर प्रीवियस जॉब्स दैट आर रिलेटेड टू द पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग। देन प्रोफेशनल लाइसेंसेस, इंक्लूड ओनली इफ दीज आर इंपॉर्टेंट टू योर लाइन ऑफ वर्क। जैसे प्रोफेशनल लाइसेंसेस कौन से होते हैं, आप में से जो बीई फार्मा करते हैं, सॉरी बी फार्मा करते हैं, या बी आर्क आर्किटेक्चर का कोर्स करते हैं, तो इनको कुछ प्रोफेशनल लाइसेंसेस मिलते हैं। एलएलबी किसी ने कर लिया, बीई के साथ एलएलबी कर लिया,
तो LLB, जो आप मान लीजिए किसी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, यहाँ से डिजाइनिंग की कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन LLB आपने कर लिया, उसका इसके साथ कोई रेलेवेंस नहीं है, सो यू नीड नॉट मेंशन इट, राइट। LLB का जो प्रोफेशनल लाइसेंस है, हाँ अगर आप उनके कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, से उनका जो मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, देन दे मे वांट दिस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल लाइसेंस। आप बी फार्मा किया, आपको प्रोफेशनल लाइसेंस मिल गया, लेकिन आप जा रहे हैं कॉल सेंटर की पोस्ट के लिए, तो वहाँ बी फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मा का जो लाइसेंस है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अनदर इज पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स। तो इसलिए मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को भी और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी एडवाइस देता हूँ कि जैसे ही आप, कितने सारे आपके पास कॉलेजेस हैं, ट्राई टू प्रिपेयर सम पेपर्स एंड प्रेजेंट इन द सेमिनार्स। ये आपको, आपका कंट्रीब्यूशन है कि आपने क्या किया, छोटा सा प्रोजेक्ट किया, उसको पेपर फॉर्म में लिखा एंड यू सेंड। देन अनदर इज प्रोफेशनल एफिलिएशंस। Exclude mention of political, social or religious or any other controversial group। कि मैं चंडीगढ़ क्लब का मेंबर हूं, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप कौन सी हो सकती है, मैं ISTE का मेंबर हूं या मैं IEEE का मेंबर हूं, ये आपके जेन्युइन है। ओके, तो दीज आर प्रोफेशनल एफिलिएशंस। डोंट राइट द यू कैन से एफिलिएशन विद एनी प्रेस और क्लब और एनी अदर पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप, मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट योर रिज्यूमे शुड नेवर इंक्लूड। पहले मैंने कुछ एस्पेक्ट्स दिए थे कि रिज्यूमे का वो पार्ट होना चाहिए। अब कुछ ऐसी चीजें जो इसमें नहीं ऐड करेंगे। रिज्यूमे टाइटल, आप कई बार हेडिंग ले लेते हैं, वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि आपने एक साथ में कवर लेटर भी लगाया हुआ है, प्लीज फाइंड एनक्लोज द जॉब रिज्यूमे ऑफ सो एंड सो, तो ऊपर हम हेडिंग ले देते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अवेलेबिलिटी, कि मैं अगर सिलेक्ट हो जाता हूं तो मैं 6 महीने बाद ज्वाइन कर पाऊंगा, तो क्यों अप्लाई कर रहे हो, राइट। सैलरी डोंट मेंशन अनलेस इट इज आस्क्ड फॉर, क्योंकि कई बार हमें खुद का वर्थ नहीं मालूम होता। या तो मैं बहुत ज्यादा हाई डिमांड करता हूं तो मेरी जॉब जो एप्लीकेशन है वो डस्टबिन में जाएगी, या मैं बहुत कम डिमांड करता हूं वो भी जाएगी। तो नेगोशिएबल, ठीक है। तो यहां पर आप कितनी जो है वो लिखना चाहेंगे। मान लीजिए ये कॉलम है सैलरी का, सैलरी एक्सपेक्टेड, आप बताएंगे कि कितनी लिखनी चाहिए या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे। आप देखिए उस क्वालिफिकेशन और उस एक्सपीरियंस के लिए चंडीगढ़ या जिस शहर में भी आप रह रहे हो वहां की आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं, फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब विद पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 5-6 ऑर्गेनाइजेशन क्या सैलरी पैकेज दे रही हैं, उसका एक एवरेज निकाल लीजिए। देन उसमें 10% या 20% अपना ऐड कर दीजिए, लेकिन वो 10% जो ऐड कर रहे हो या 20% ऐड कर रहे हो उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं ये क्यों डिमांड कर रहा हूं, मेरे में क्या प्लस पॉइंट है, मैं किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेके जा सकता हूं। तो ये कई बार आपको ये तो इंटरव्यू में तो पूछते ही पूछते हैं, प्राइवेट कंपनी जो है पूछेंगी, लेकिन जॉब रिज्यूमे में आप अगर ये कॉलम इंक्लूड करना है, अगर उन्होंने कहा हुआ है, तो थोड़ा सा आप सर्वे कर लीजिए कि इन एंड अराउंड योर सिटी फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट विद पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्या पैकेज दिया जा रहा है, कितने सैलरी मिल रही है, उसमें आप एडिशन कर सकते हैं। मेंशन ऑफ एज, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ऊपर आ चुकी है, सो एज नहीं लिखना। रेस, रिलीजन, जेंडर और नेशनल ओरिजिन नॉट रिक्वायर्ड। नेशनल ओरिजिन तभी चाहिए जब आप आउटसाइड कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ग्राफ्स नॉट रिक्वायर्ड। उस केस में रिक्वायर्ड है
जहाँ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए कर रहे हो, या आर्किटेक्चर के लिए कर रहे हो, तो आपने क्या क्या जो है चीज़ें बनाई हैं, डेवलप की हैं, उनका आप फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स वगैरह दे सकते हो। एंड वीकनेसेस, तो वीकनेसेस भी पॉजिटिव वे में आपको लिखनी है। मेरी वीकनेस है कि मैं तब तक वो काम नहीं करता जब तक मैं उसको प्लान नहीं कर लेता। ये मेरी वीकनेस है कि मैं पहले मैं चाहे एक दिन लगाऊंगा प्लानिंग में, उसका जो है रूट डिजाइन करने में, उसके बाद मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूँ। दिस इज माई वीकनेस। मेरी वीकनेस है कि मैं शाम को अपना ऑफिस छोड़ने से पहले, यानी अपनी टेबल छोड़ने से पहले, सब चीज़ों को सलीके से रख के जाता हूँ, ताकि अगले दिन मुझे नया स्टार्ट एकदम से मिले। ये मेरी वीकनेस है। ये नहीं कि अगले दिन जब मैं सुबह आऊं सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो आप बताओ काम करने का मन करेगा क्या? यार सारा कुछ ऐसे अजीब सा लगेगा। या तो आप उसको ठीक से करने की कोशिश करें। तो मेरी वीकनेस क्या है कि मैं शाम को जाने से पहले मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूं। आई प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे, कि कल सुबह 9 से 10 में ये करना, 10 से 11 में ये बनना है, क्योंकि इससे मैं अपने आप को कमिटेड रखता हूं और मेरे सारे काम जो है वो एक तरीके से हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप में से कौन लोग बनाते हैं रात को सोने से पहले हाउ मेनी यू हैव प्रिपेयर्ड टू डू लिस्ट? कोई नहीं बनाते। बनाइए, फॉलो भी कीजिए। देखिए, रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाए, चाहे उसमें आप पर्सनल काम भी डाल दीजिए, क्योंकि जब आप ऑफिस में पहुंच जाएंगे या कॉलेज चले जाते हैं तो एक चीज याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर शाम को ओहो यार ये काम तो रह ही गया। ठीक है, सो ये एक हैबिट बनाइए रात को सोने से पहले कि कल मैंने इतने बजे से इतने बजे तक जब मैं ऑफिस आऊंगा तो ये काम करने हैं, रास्ते से जब मैं वापस घर जा रहा हूं तो मुझे ये चीज खरीदनी है या कुछ और काम करना है वगैरह वगैरह, मुझे से मोबाइल को रिचार्ज करवाना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, या मुझे लाइफ इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम देना है वगैरह वगैरह, ये सारे आप डाल सकते हो। सो प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट। सो वीकनेसेस जो है वो पॉजिटिव वे में आपने डिस्क्राइब करनी है, राइट? मेरी वीकनेस ये नहीं, जब तक मैं 2 पैग पी लूं तब तक मैं काम कर नहीं सकता, तो कहेगा भैया वापस जा। हाँ, ये वीकनेस नहीं आपने बतानी। हाँ जी। यू आर नॉट पंक्चुअल, तो भैया दरवाजा बाहर है, प्लीज गो। देखिए, सब सुबह डॉक्टर MP पूनिया ने क्या बताया था कि अब आज के ज़माने में वो क्या होता है, हाँ नहीं, वो आजकल वो आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, स्कैनर लग गए हैं सब ऑफिस के बाहर, कि आपने अपना जो है थंब इम्प्रेशन देना है, वो इमीडिएटली नोट डाउन करेगा और अदरवाइज आपकी सैलरी उतने आवर्स की काट लेगा, राइट? तो ये हमारे इंस्टीट्यूट में भी लगने वाला है। तो हमें अटेंडेंस आपकी यानी हर सेशन में लेनी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप क्लास में एंटर करेंगे आप अपना अंगूठा लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि यानी वो अटेंडेंस के 10 मिनट आपके बच गए, हम सीधा पढ़ाएंगे क्लासरूम में। सो पंक्चुअलिटी हैज टू बी इंश्योर्ड, क्योंकि जब हम पंक्चुअल नहीं होंगे हमारे स्टूडेंट्स कैसे पंक्चुअल होंगे? देखो ना, मैं अगर क्लासरूम में 9 बजे मेरी क्लास है और मैं 9:10 में पहुंचूंगा, 10 मिनट तक तो कुछ बच्चे पहले ही निकल जाएंगे बाहर। मुझे 9 बजे क्लास है, 9 बजने में 5 मिनट में क्लास के बाहर होना चाहिए, क्योंकि जो भी जॉब मैं कर रहा हूं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा रहा हूं, एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग ऑलवेज। इवन अगर आप क्लासरूम में जा रहे हो, always enter the classroom with an attitude that I am going to enjoy my people। अगर इस attitude से जाएंगे तो आपको मजा आएगा, and not with an attitude oh today again there is class or there is work। काम तो करना है ना, उसी के लिए पेमेंट मिल रही है। सो रीजन फॉर लीविंग ये मैंने आपको बताया। सो गिव
वेरी गुड जस्टिफिकेशन, सो इसको इंक्लूड मत कीजिए अनलेस इट इज आस्क्ड फॉर। एंड देन रेफरेंसेस, रेफरेंसेस भी इंक्लूड नहीं कीजिए अगर नहीं कहा गया। अगर फॉर्मेट में उन्होंने कहा है कि आपको 2 या 3 लोगों के रेफरेंसेस देने हैं, तो रेफरेंसेस जो है किसी पॉलिटिकल लीडर के नहीं देने, रेफरेंस उन लोगों के देने हैं जो आपके काम से या आपकी क्वालिफिकेशन से आपको जानते हैं, या आप अपने फादर का नेम कि मेरे फादर जो है इस पोस्ट पे लगे हुए हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आपकी फादर के नाम से या आपके फादर की स्टेटस के नाम से जॉब नहीं देने जा रही, एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी तो बिल्कुल नहीं, उनको तो काम चाहिए। सो आप अपने कॉलेज के एचओडी का राइट रेफरेंस दे सकते हो, या प्रीवियस एम्प्लॉयर को भी। आप जब भी प्रीवियस एम्प्लॉयर को छोड़ के जा रहे हो तो पॉजिटिव नोट में छोड़ के जाइए, ताकि आपको वो याद करे, आपको वो मिस करे। हो सकता है आपको वो छोड़ने मतलब जाने ना दे, आपके लिए कुछ और अपॉर्चुनिटी तैयार करे। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब मैंने ये जॉब छोड़ देनी है, तो जैसे आपने बोला वो पंक्चुअल नहीं रहेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, जो काम दिया उसको आधा करेंगे, ताकि भी वहां से फटाफट निकलने की कोशिश है, क्योंकि मैंने जस्ट सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं। ऐसा नहीं करे प्लीज, ये एटीट्यूड कभी भी आप अडॉप्ट नहीं करिए। ऑलवेज प्रूफ रीड योर रेज्यूमे विद ए मैग्नीफाइड ग्लास। मैग्नीफाइड ग्लास क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग एरर है, सीधा डस्टबिन में जाएगा। बैकवर्ड रीडिंग कीजिए, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैग्नीफाइंग ए विद रिज्यूमे योर प्रूफ रीड ऑलवेज। इससे मैं तो स्पेलिंग एरर चेक कर सकता हूं। और दूसरा तरीका है, आपने जो रिज्यूमे तैयार किया आप अपने फ्रेंड को दीजिए और उसको बोलिए क्रिटिकली इसको देखिए एंड आइडेंटिफाई एनी एरर। जो वो एरर आइडेंटिफाई इन्होंने किए, आपको में विलिंगनेस होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट करने। ये नहीं कि तुम्हें क्या आता है। कई बार ना आपस में बच्चे लड़ पड़ते हैं, तू क्या बता रहा है मेरे को, देखो तो खुद ही नहीं पता। ऐसा नहीं, आप फीडबैक लीजिए ऑनेस्टली। पर्पस है फीडबैक का टू इम्प्रूव, पर्पस इज नॉट टू प्रूव। हाँ, फीडबैक लेना और देना बहुत जरूरी है। ओके, सो हैव ए फ्रेंड रिव्यू योर रिज्यूमे टू कैच सम ऑफ द मिस्टेक्स द कंप्यूटर मे हैव मिस्ड। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर में एरर्स नहीं दिखते, तो कोशिश करें उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको रीड आउट अलाउड कीजिए। फिर आपको लगेगा कहाँ पर पॉज देना है, यानी कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आना है, तभी पता चलता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे कई बार कई जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग, वो कहते हैं ना अंडरलाइन आ जाता है रेड में, वो नहीं आता। डिवाइस डिवाइस, तो इसमें वो नहीं आएगा। देयर, देयर में THERE है, THEIR भी आ सकता है। ओके, सो मिस्टेक नहीं आएगा, तो बेटर है उसको प्रिंट आउट लीजिए। सो ऑलवेज प्रूफ रीड। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, सीधा प्रिंट आउट निकाल लिया, कोई स्पेलिंग एरर दिखा, वाइट फ्लू लगाया, उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर दी। नॉट भैया, आज के ज़माने में 50 पैसे में या 1 रुपए में प्रिंट आउट मिलता है, तो प्रिंट आउट जो है वो लेना है नया। बी कंजर्वेटिव, बी सिंपल, डू नॉट यूज ए बंच ऑफ फैंसी लेटरिंग, स्टिक टू वन टाइप ऑफ फॉन्ट, एरियल या टाइम्स रोमन। पूरे एक जो है एप्लीकेशन में या रिज्यूमे में एक ही तरह का फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज। यूज बोल्ड, italics, bullets, underline where desired, and do not make your lettering very small. Use short sentences. ये नहीं कि वो एक बड़ा सा पैराग्राफ उसमें फुल स्टॉप एक ही आया है, because small sentences convey sharp message. So always use short sentences. Use quality paper. Executive bond वो थिक होता है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है जब आप अप्लाई करते हैं वो कई हाथों से निकलता है वहां ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो
उसका जो क्वालिटी है एक तो वाइट होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो येलो, ग्रीन, पिंक ऐसे कलर पेपर में उसका प्रिंट आउट लेते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन वाइट पेपर, लेकिन वो थोड़ा सा मजबूत पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लाइट वेट है जिसमें मैंने पहले क्या बोला था, कुछ बच्चे जो हैं इस तरह से कई फोल्ड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ऐसा नहीं चलेगा। जब आप ये एप्लीकेशन भेज दी, उसकी 5-6 कॉपी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं वो ऐसे फाइल फोल्डर में लेके जाइए, और सामने अपने जो ग्रुप में बैठे हुए हैं जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं उनको एक एक कॉपी दीजिए। मे बी उनके पास उस समय नहीं है, you can give. Okay, so use quality paper, very much required. Never falsify any information, always be truthful, because many questions that are posed during interview are based upon your job resume. तो जॉब रिज्यूमे पर आधारित हैं जो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बी कंसाइज, इजी टू रीड होना चाहिए। It must sell your qualities. One page is sufficient for people who have just started their careers. 2 pages for more extensive experience. और 2 से ज़्यादा अगर आप बहुत ही हाई फाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर पोस्ट, प्रिंसिपल्स पोस्ट एंड सो ऑन। अपीलिंग, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जॉब रिज्यूमे इतना अपीलिंग अगर कर रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही, तो वो कहता कि नहीं भैया मैं इसको एक बार मिल तो लूँ, हो सकता है मैं इसके लिए कोई सूटेबल जॉब जो है निकाल सकूँ। ऐसा बहुत लोगों को मिली है, उनको डिफरेंट पर्पस के लिए रखा गया है। और ये हमें जो एचआर मैनेजर, सुबह डॉक्टर पुनिया बता रहे हैं ना कि हम कई इंडस्ट्री के एचआरएम को भी बुलाते हैं, दे गिव अबाउट देयर फीडबैक। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई अब अगर अपीलिंग है तो वी कैन गिव देम सम अदर काइंड ऑफ जॉब आल्सो। अवॉइड द यूज ऑफ आई इंक्रीज्ड 10% इन टर्नओवर। रॉन्ग, आपने अकेले नहीं की। You begin with action verb. Increased 10% in sales. Okay, so don't use the word I. Put yourself in the shoes of the employer. So describe a person which the employer is looking for. उसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो मेरे में कौन सी हैं, तो मैं कौन सी पहले हाईलाइट करूं ताकि वो फटाफट मुझे ले ले। Presentation and order is very important. Now cover letter, मैं अब आपके सामने कुछ क्योंकि ये जो लेटर है, ये जो रिज्यूमे है, इसके ऊपर एक कवर लेटर भी होना चाहिए। ये तो है नहीं कि आप सीधा कवर लेटर देंगे, सॉरी रिज्यूमे भेज देंगे। इट मस्ट हैव ए कवर लेटर आल्सो। सो कवर लेटर जो है, जॉब रिज्यूमे वो बाद में पड़ेगा, कवर लेटर पहले पड़ेगा। तो कवर लेटर में आपने हाईलाइट करने हैं मेन एट्रीब्यूट्स। अगर वो एम्प्लॉयर कन्विंस्ड है, देन ही विल लाइक टू रीड द होल रिज्यूमे। सो कवर लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। So use a good quality letter headed paper. Look at what the job job advertisement is seeking. Keep your this CV cover letter brief and concise. Avoid fancy letters and uppercase. Okay, and write a short and concise cover letter. अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ। Your full name and address detail, date, reference if required, then dear Mr, Mrs, Miss, उसका सरनेम। तो आप देखिए कि who is the person responsible for recruitment, उसका नेम एक्वायर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये थोड़े से एफर्ट तो आपको करने हैं। कई बार तो एडवर्टाइजमेंट में एचआर मैनेजर का नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है HRM। ओके, सो फोन कॉल दिया हुआ है या उनकी वेबसाइट पे दिया है वेदर दैट HRM इज ए मेल और फीमेल। सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट मिस्टर और मिस और मिसेज सो ऑन। दीज आर
then optional heading, normally the job title and reference if they have asked. तो अब आप लिखेंगे I enclose my CV in respect of the above reference. आप लिखेंगे I enclose my CV in respect of the post of supervisor that appeared in the Tribune dated so and so. रेफरेंस आ गया ना ऊपर, या तो रेफरेंस ऊपर दे दीजिए या आप पैराग्राफ में लिखेंगे आई एनक्लोज माई जॉब रिज्यूमे इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर, जो भी पोस्ट का टाइटल है, विच अपीयर्ड इन द ट्रिब्यून डेटेड सो एंड सो. आगे सेंटेंस क्या लिखा है, यू विल सी दैट आई हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस फॉर दिस पोजीशन. Notably, you state 2 or 3 main attributes जो उनकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं. ये पढ़ने के बाद आपका रिज्यूमे वो पढ़ेंगे, नहीं तो यहीं से डस्टबिन में जाएगा. कई बार ऐसा ही लिखते बच्चे, प्लीज फाइंड एनक्लोज द जॉब रिज्यूमे ऑफ माई दिस फॉर दिस पोस्ट, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसीडर इट. ऐसा नहीं लिखना, आपको यहां पर भी हाईलाइट करनी है आपके 3-4 जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज क्या हैं, स्किल्स क्या हैं. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, योर सिंसियरली, एंड साइन. ओके, सो ये भी वाइट पेज के ऊपर, गुड क्वालिटी पेपर के ऊपर आपने इसका प्रिंट आउट लेना है. और वैसे आज के ज़माने में अच्छे प्रिंटर अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास अभी भी इंक जेट प्रिंटर हैं, तो उसका एक लिमिटेशन है, या लिमिटेशन कीजिए या डीमेरिट कह दीजिए कि जैसे ही प्रिंट आउट आता है वो थोड़ा हल्का सा गिला सा होता है, तो आपका हाथ लग जाता है, उससे इंक जो फैल जाती है, तो हम ऐसे ही उसको भेज देते हैं. तो वेट करिए थोड़ी देर, उसको सूखने दीजिए. देन कवर लेटर्स फॉर अनएडवर्टाइज्ड पोजीशंस और अपॉर्चुनिटीज. कई बार आपको आपके टीचर बता देते हैं कि रमेश फलां ऑर्गेनाइजेशन में 2 पोस्ट निकली हुई हैं, आप अप्लाई कर दीजिए. या कई बार क्या करते हैं कुछ बच्चे, बिना एडवर्टाइजमेंट के वो कंपनी को लिख देते हैं कि हमारी ये क्वालिटीज़ हैं और अगर आपके पास सूटेबल जॉब है तो आप हमें मौका दीजिए. लेकिन ये करने से पहले, ये लिखने से पहले आपको एक होमवर्क करना है. वो होमवर्क क्या करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हैं, पहले तो देखिए कि आपकी क्वालिटीज़ यानी आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल से रिलेटेड कौन कौन सी वहां पर जॉब टाइटल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, पोस्ट अवेलेबल नहीं है, जॉब टाइटल्स, ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन, तब आप उनको हाईलाइट करेंगे. इसलिए मैंने बोला था ये स्टैटिक नहीं है, आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट तरह से लिखेंगे, फोकस करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट को पहले, अगर आपके में वो है. सो कवर लेटर फॉर अनएडवर्टाइजमेंट पोस्ट, so you can send a CV to potential employer not in response to any advertisement. In this case, get the name of senior person responsible. तो पहले acquire कीजिए उनकी वेबसाइट से या फोन करके उनके HR, कौन व्यक्ति जो है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है. Imagine the attributes that they might need. Imagine कीजिए या try to inquire. इमेजिन कीजिए या ट्राई टू इंक्वायर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. अगेन सेम वर्डिंग और सेम गाइडलाइंस आर नेसेसरी. गुड क्वालिटी पेपर, नो फैंसिंग लेटरिंग, एक ही तरह का होना चाहिए, वगैरह वगैरह. अब ये उसकी जो है फॉर्मेट है, ऊपर वाला सब सेम रहेगा. नीचे लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन एनी ओपनिंग्स इन दी अबव एरिया. अबव एरिया कौन से, आपने जॉब टाइटल्स अक्वायर किए ऑर्गेनाइजेशन से कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, राइट. इन दी अबव एरिया एंड आई एनक्लोज माई CV, you will see that I have skills and capabilities that enable me to make a significant contribution to an organization such as your own. Notably, state 2 or 3 main attributes. I look forward to hearing from you, and so on. So, ठीक है. So you can also send
योर जॉब रिज्यूमे फॉर अनएडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो उसके लिए मैंने आपको टिप बताई कि आप एक तो अक्वायर करेंगे हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफिंग रिक्रूटमेंट, और कौन कौन से जॉब टाइटल्स वहां पर हैं जो जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन या आपका स्किल चाहिए, राइट। और फिर उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है ताकि आप स्किल्स को स्पेसिफाई कर सकें, देन आप उनको हाईलाइट कीजिए जो उनको चाहिए। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि आंख बंद करके कभी भी अपने जॉब रिज्यूमे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मत भेजिए, वो सीधा डस्टबिन में जाएगा। पहले ये इमेजिन कीजिए कि वो व्यक्ति किस तरह का चाहते हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल होना चाहिए, किसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ हाईलाइट करेंगे और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे, राइट, इंटरव्यू में जाने से पहले। नाउ कमिंग टू रेट योर रिज्यूमे। आपने रिज्यूमे तैयार कर लिया, अब आप अपने फ्रेंड को दीजिए, उनको बोलिए कि 10 में से आप मुझे कितने नंबर दोगे। तो कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपने ऑब्जर्व करने हैं? वन इज ओवरऑल अपीयरेंस। ओवरऑल अपीयरेंस में क्या आएगा? इज द लेआउट प्लीजिंग टू द आई? डज द written matter fit comfortably on the page without overcrowding or too much white space? अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था क्वालिफिकेशन का आपने टेबल बनाया या एक्सपीरियंस एक्वायर किया उसका टेबल बनाया, आप टाइप कर रहे हैं, टेबल जो है आधा इस पेज पे आ गया, आधा अगले पेज पे आ गया, ये नहीं चलेगा। एक टेबल एक ही पेज में आना चाहिए, उसको इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि वो उस पेज में आ जाए, टेबल ब्रेक नहीं करना। Okay. Another is the resume on good quality bond paper and the typing very clear and unsmudged? कई बार प्रिंटर भी टाइपिंग करता करता और प्रिंटिंग करता करता वो 2 लेटर्स इकट्ठा टाइप स्मज कर देता है, तो वो पेज काम चलाऊ नहीं कि चलता है, क्या फर्क पड़ता है। ये छोटी सी चीज है जो एटीट्यूड है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अपने कुलीग के रूम में गया तो उसके ना वॉल क्लॉक जो जैसे वो सामने लगी हुई ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तुम्हारी ये जो वॉल क्लॉक थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको सीधा कर दे। उसने पता क्या जवाब दिया? पंजाबी में बोला की फर्क पैंदा है, यानी क्या फर्क पड़ता है। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, जो भी काम करना है उसको उसके लिए पहले मेटिकुलस प्लानिंग करें, उसमें नीटनेस हो, उसमें क्लैरिटी हो, कोई भी मिस्टेक, कोई ओवर राइटिंग नहीं। तो आवर एटीट्यूड शुड बी क्या है बताओ? बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनका बहुत फर्क पड़ता है। सो इज द रिज्यूमे ऑन गुड क्वालिटी बॉन्ड पेपर? इज द रिज्यूमे इजिली रीडेबल? आपने बुलेट्स यूज किए, सेंटेंसेस लंबे नहीं हैं, फॉन्ट्स जो हैं वो एक ही तरह का यूज किया एक ही एप्लीकेशन में, ओके, एब्रीविएशन नहीं है। डज द रिज्यूमे यूज बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग टू हाईलाइट स्ट्रेंथ्स? Is important information located prominently at the left and near the top of the page? And how much marks you will give out of 10? आप अपने फ्रेंड को दीजिए। अगर उसने मान लीजिए ये हमने रखे 2, 4, 6 रखे हुए हैं, राइट, इनको 12 नंबर दे दीजिए, 2-2 नंबर। तो अगर किसी ने 12 में से आपको 8 दिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कम दिए, इसका मतलब वहां पर स्कोप है। उसे पूछिए कि आपको क्यों यहां पर अच्छा नहीं लगा। ऑनेस्टली आप फीडबैक दीजिए, गिव इंफॉर्मेटिव, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, राइट। देन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के ऊपर आप उसको रेट कीजिए। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं? गोल फोकस्ड, योर करियर ऑब्जेक्टिव,
क्योंकि आपने पहली स्टेटमेंट लिखी करियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो टेक्स्ट आ रहा है, does that text, that is does the qualification, skill, experience lead to the objective or not? क्योंकि वो पूछेंगे आपने करियर ऑब्जेक्टिव तो ये बनाया, अब इसको अचीव कैसे करोगे, तो अचीव करने के लिए आपके पास क्या है और क्या आप करोगे वो आपको एक्सप्लेन करना है. देन अनदर इज लेंथ. कैन इट बी शॉर्टेंड? इज ए पेज कंफर्टेबली फिल्ड? Relevance. Is the material relevant, structured and sequenced? Proper sequence में दिया या नहीं दिया? Format. Is the format appropriate for the type of post you are applying? Action orientation. Do sentences and paragraphs begin with action verbs? Action verb क्या होते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं action verb. जैसे मैं बोलता हूं डिफाइन फोर्स, अब यहां पर एक्शन वर्ब क्या है? डिफाइन. ये आपको इंडिकेट कर रहा है स्कोप ऑफ द आंसर. अगर मैं बोलूं व्हाट इज फोर्स, तो इसमें स्कोप कुड बी एनी. ठीक है. या मैं बोलता हूं व्हाट डू यू नो अबाउट फोर्स, स्कोप इज अनलिमिटेड. तो वो अनलिमिटेड जो है उसमें क्या होगा? एवरीबॉडी विल इंटरप्रेट डिफरेंटली. लेकिन जब मैं बोलता हूं डिफाइन फोर्स, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, तो ये स्टेट वर्ड और डिफाइन वर्ड एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब का मतलब या तो आप लिख के बताओगे या आप ओरली बताओगे. आई कैन ऑब्जर्व, आई कैन एवेल्युएट ऑब्जेक्टिवली. सो इंक्रीज्ड 10% इन सेल्स टर्नओवर, तो इंक्रीज ये एक्शन वर्ब है. स्पेसिफिसिटी. Does the resume avoid generality and focus on specific performance and achievement? Completeness. Is all information, relevant information included? Quantify कीजिए जो आपकी पुरानी achievements हैं उनको in terms of numerical figures आप लिखिए. And how well does the resume accomplish the purpose of obtaining the interview letter? कितने चांसेस है कि मुझे इंटरव्यू लेटर जो है मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, इस सेशन में वी हैव लर्नड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिज्यूमे एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम करिकुलम विटा, व्हाई दीज आर नेसेसरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग करिकुलम रिज्यूमे, एंड व्हाट आर द टिप्स फॉर इफेक्टिव करिकुलम विटा और जॉब रिज्यूमे. That is what information must be included and what should not be included, and then the tips to writing effective resume and then how to rate. So अगर आपके कोई queries हैं, questions हैं, you are welcome. पहले मैं सेंटर से पूछना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है या आपको कोई डाउट है, और if you have any question you are welcome. Yes. हाँ जी. Yes. Yes, sir. We are from Government Polytechnic College, Barmer. Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. सर, बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर कोई एक रिज्यूम का एग्जाम्पल मिल जाता जिससे उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते. तो ऐसे की पॉइंट्स तो उन्हें समझ में आ ही गए, क्या क्या ध्यान रखना है. कोई एक रिज्यूम से एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें समझ आ जाता तो. ओके, मैंने एक तैयार किया हुआ है. आप हाँ, डॉक्टर बेदी को जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, ताकि मैं रिज्यूमे जो बाय ईमेल हम आपको भेज देंगे, आपके जो टीपीओ हैं, तो दे कैन शेयर दैट विद स्टूडेंट्स. रिज्यूम भी मिल जाए, और सर जो अपन ने आज पीपीटी जो देखा है इसका भी सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि कहीं कहीं से वो क्या कट के आ रहा था हमारे पास वीडियो में, साइड की जो थी ना लाइंस,
ऊपर से लाइन, मतलब मेन क्रक्स हमें समझ आ रहा था, सेंटर वाज विजिबल, 80% वाज थिंग वाज विजिबल, 20% जो साइड कट के आ रहा था। Okay, okay, no problem. We will upload the information on the website. हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। और दूसरे किसी और सेंटर? यस, और जो सेंटर्स हैं वहां से कोई बच्चे ने कोई सवाल पूछना है, वी आर वेलकम। एसकेवी सर। हाँ जी, हाँ जी सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या रिज्यूम होना चाहिए सर? हाँ जी, सर फ्रेशर कैंडिडेट है उसके लिए क्या रिज्यूम होना चाहिए सर? देखिए ऐसा है, जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, देन उसकी क्वालिफिकेशन वो पहले हाईलाइट करेगा। उसके बाद स्किल जो है वो 3 साल के डिप्लोमा के दौरान उसने वर्कशॉप में या लेबोरेटरी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, वो एक किस्म के स्किल्स हैं। या उसने इंडस्ट्री में कोई जाके 2 महीने के लिए काम किया है, पूरे वो स्किल वो हाईलाइट करे। और उसके बाद वो देखे कि क्या फॉर्मेट जो है वो किसी कंपनी ने एक फॉर्मेट दिया है तो उसके अनुसार आप उस रिज्यूमे को लिखेंगे, अदरवाइज जनरल चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी बताया कि कौन सी कंपोनेंट्स जो है वो रिज्यूमे में होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। यस